Hello. Before coming to the topic, I want to introduce myself. Myself, Ajay Kumar Sinha, having the educational and business qualification of MCom, LLB and CAIIT. I am born and brought up in Ranchi, Jharkhand, and I got superannuated from the esteemed institution Bank of India in January 2020 after serving more than 37 years. I served the bank as various capacities in various places and states. I served the bank as branch manager, as second, third and other officer in the branch, as officer in zonal office, as inspector of auditing, and lastly, I served the bank as faculty member. My last posting was Staff Training College, Bhopal, where I was posted as faculty member cum chief manager. I served STC Bhopal about 3 years, and this is my teaching experience. After retirement, I have settled in the city Bangalore and doing the work of study for the benefit of young and energetic bankers like you and also the students of commerce. I wish you all the success in life, and now please come to the topic. Thank you. Now we proceed to asset side. Okay, coming to asset side. Friends, now coming to the asset side. We have broadly classified the asset side in 4 categories, and first one is current assets. लायबिलिटी साइड का पहला कैटेगराइजेशन ध्यान में रखिए. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ करंट लायबिलिटी? अमाउंट which are payable within 12 months are current liabilities. In the same way, जो अमाउंट हमें 12 महीने के अंदर मिलने वाले हैं, the amount which are to be received by the firm within 12 months from the date of balance sheet is called current asset. फिर से ध्यान दीजिए, किताबों में अक्सर मिलता है assets which are convertible in cash within 12 months from the balance sheet date are categorized as current assets. तो इसे हिंदी में समझा जाए, उन असेट्स को हम करंट असेट्स कहते हैं जो हमें 12 महीने के अंदर मिलने हैं, मिलने की उम्मीद है. तो if someone asks in an interview simple question, what is current asset? What will be your reply? Current assets are those assets
which can be converted into cash within 12 months from the date of balance sheet. Simple. What are the examples of current assets? करंट असेट्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन, कैश. फर्स्ट वन, कैश. कैश एंड बैंक बैलेंस. Already in cash form, already in liquid forms. So, first example is cash and bank balance. Secondly, raw materials, work in progress, semi-finished products, finished products which are lying in our godown or store or soap is categorized as current asset. Third one, sundry debtors and bills receivable. What is sundry debtors? जिसे हम सामान उधार में बेचते हैं, उनसे जो पैसा प्राप्त होना है वो ऐसा उम्मीद किया जाता है कि वो 12 महीने के अंदर मिलेगा, इसलिए इसे हम करंट असेट्स में कैटेगराइज करते हैं. सन्ड्री डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल पे एक चीज का याद रखना है हमें कि ये 12 महीने से घटकर 6 महीना हो जाता है इसकी अवधि. मतलब all those sundry assets, all those sundry debtors and bills receivable which are receivable within 6 months are categorized in under current assets. Interest receivable, if any interest which has not been received by the firm but it is expected to receive, will be categorized as current asset. Other current assets such as government securities, bank deposits which are maturing in this year within 12 months are categorized as second category. Second category, what is second category? That is fixed assets. आपको यदि करंट असेट्स का एग्जाम्पल याद है या डेफिनेशन याद है, उसी के बेसिस पर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं फिक्स्ड असेट्स को भी. व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ करंट असेट? अमाउंट रिसीवेबल विद इन 12 months. So it is very clear that amount which are receivable after 12 months, which are expected to be received by the firm after 12 months from this date, will be fixed asset. So definition as per periodicity is fixed assets are those assets which are expected to be converted into cash after 12 months. एक और डेफिनेशन भी आप ले सकते हैं इसका, जो कि डिप्रिसिएशन के मेथड से है. assets which are depreciated, which are reduced due to the utilization, which are assets which are reduced due to uses, are called fixed assets. तो दो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा. पहला 12 महीने के बाद जो प्राप्त होता है उसे फिक्स्ड असेट कहते हैं. दूसरा, जिस असेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उसे फिक्स्ड असेट कहते हैं. और तीसरा एक और बहुत सिंपल तरीका है इसे समझने का, असेट्स विच आर फिक्स्ड इन नेचर. असेट जो कि अपने जगह पे फिक्स्ड है,
उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। इसमें सिर्फ एक आपका एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल अपनी जगह पे फिक्स नहीं होती है, वो चलते रहती है, लेकिन उसे फिक्स्ड एसेट में कैटेगराइज करते हैं। तो इन एग्जांपल्स के आधार पर, तीन तरीके से आप फिक्स्ड एसेट्स को डिफाइन कर सकते हैं, और इनके बेसिस पर आप क्या क्या एग्जांपल्स इसके आए। पहला क्या आया, लैंड एंड बिल्डिंग, मान लीजिए लैंड बिल्डिंग। दूसरा क्या आया, फर्नीचर। थर्ड वन क्या आएगा, असेट, एसी, एयर कंडीशनर, मशीनरीज। फोर्थ क्या आ रहा है, मोटर व्हीकल्स। तो इन सब को आप कैटेगराइज कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट में। इनके एग्जांपल्स में आप इसे लिख सकते हैं आपके हिसाब से। आप यदि नोट करना चाहें तो पहला है लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड वन इज व्हीकल्स, फोर्थ वन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिफ्थ important and very confusing, FDRs with banks, which are maturing after 12 months. And last one, shares and securities of other firms, जो मैंने खरीद के रखा है। तो ये है आपके फिक्स्ड असेट्स का एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशन। इसमें ध्यान रखिएगा कि डिप्रिसिएशन के बेसिस पर भी हमने कैटेगराइज किया है फिक्स्ड एसेट को। डिप्रिसिएशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, फिक्स्ड मेथड, एंड सेकेंड वन इज diminishing या written down value method, written down value method। तो इन दोनों डेफिनेशंस को या इन दोनों डेप्रिसिएशन के तरीकों को हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इन दोनों डेप्रिसिएशन का तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कैटेगराइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। और बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि हमसे वो ज्यादा कॉमर्स के बारे में जानकार होते हैं, इसलिए वो अपने बैलेंस शीट में इस प्रकार से, जहां फिक्स्ड और डिमिनिशिंग का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो करके वो हमें चकमा भी देते हैं और हम लोग इसे समझने में असमर्थ रहते हैं। इसलिए इसे अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है कि किस तरह के असेट पर फिक्स्ड मेथड लगता है डेप्रिसिएशन का, और किस तरह के असेट पर रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगता है। ओके, थर्ड वन, इंटेंजिबल असेट। देखिए, इंटेंजिबल असेट पे आ गए हम लोग। बैलेंस शीट में कुछ असेट ऐसे भी होते हैं, दिखाई देते हैं, लिखे रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लिखे रहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहिए तो वो दिखलाई भी नहीं देंगे, मगर उसके एग्जिस्टेंस से आप हट भी नहीं सकते। आपको मानना पड़ेगा कि दे आर एग्जिस्टिंग, ऑल्दो दे आर नॉट विजिबल, ऑल्दो वी कैन नॉट टच देम। तो असेट्स विच आर नॉट टेंजिबल, जिन असेट्स को हम छू नहीं सकते हैं, उन असेट्स को हम लोग इंटेंजिबल असेट का नाम देते हैं। ये कैसा असेट हुआ भाई जिन्हें हम छू भी नहीं सकते? तो बैलेंस शीट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, गुडविल बहुत कॉमन एक असेट है।
व्हाट इज गुडविल? ये कहाँ है, कहाँ दिखता है? फर्नीचर आपको दिख रहा है, सन्डी डेटर्स आपको दिख रहे हैं कि मोहन श्याम राम ये सब हैं सन्डी डेटर्स। इलेक्ट्रिक आइटम्स आपको दिख रहे हैं, इक्विपमेंट दिख रहे हैं, एसी दिख रहा है, मोटर व्हीकल दिख रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है, बट वेयर इट इज? गुडविल इज वेयर? सो व्हाट इज गुडविल? अगर हम सबसे पहले इसे एक डिफाइन कर लें इंटेंजिबल असेट्स को, कि असेट्स जो कि टेंजिबल नहीं हैं, assets which are not tangible, but we cannot deny the existence of the assets are intangible assets. This is the definition of intangible asset. इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? अब मैं जितने भी एग्जाम्पल दूंगा आपको सभी में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहला एग्जाम्पल इसका है, जो फर्स्ट वन है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, व्हाट इज दिस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस? दिस इज नथिंग बट प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए कि मैंने एक फर्म का इस्टेब्लिशमेंट करने का निर्णय लिया, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट फर्म इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो व्हेन द फर्म इज नॉट इन एग्जिस्टेंस टिल द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें जो खर्च होंगे, उससे रिलेटेड जो खर्च होंगे, वो मैं कहां लिखूंगा? उसकी बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस लिखने के समय तो अभी आई ही नहीं है। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि फर्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो जितने भी खर्च उस फर्म के ऑपरेशन से पहले हो रहे हैं, उन्हें हम प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको दिखलाई देगा क्या? बिजली बिल पेमेंट किया, मजदूरों को दिया, ठेकेदारों को चाय पिलाया, ये सब जो खर्च होते हैं, वो खर्च तो बिजनेस के लिए ही हो रहा है, लेकिन वो कहीं लिखा नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, कागज के टुकड़े पर एक डायरी पे लिखना शुरू करते हैं, इस तारीख को इतना हुआ, इस तारीख को इतना हुआ, और जिस दिन फर्म की शुरुआत होती है उस दिन उसका एंट्री कर दिया जाता है, टोटल करके उसका नाम होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सपोज कीजिए कि किसी फर्म में 10,000 रुपया है, ये 10,000 रुपया आपको असेट साइड में शो करना है। अब सवाल है कि असेट साइड में क्यों? बिकॉज all the assets and expenses means those expenses which has not written in profit and loss account are to be shown in asset side. Assets and expenses, preliminary expenses is also expenses, so this has to be shown here. तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में ध्यान आपको ये देना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जब तक फर्म का एग्जिस्टेंस रहेगा तब तक के लिए है। अब जैसे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, उसमें खर्च हुआ, उसमें आने जाने में जो खर्च लगे, तो जब तक फर्म मेरा एग्जिस्टेंस करेगा, जब तक फर्म का एग्जिस्टेंस होगा तब तक वो वैलिड होगा। इसलिए फर्म का कितना आयु है, एक्सपेक्टेड लाइफ कितना है, इसके हिसाब से हम लोग उसे हर साल बांट देते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि ये फर्म 5 साल चलेगी। मैंने मीन्स प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म। प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म एस्टिमेट करता है कि 5 साल में ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो इस 10,000 को 5 साल में हर साल 2-2 हजार रुपया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल डाल के खत्म करना है। इट मीन्स कि आपको जो बैलेंस शीट दिया है प्रोपोनेंट ने, आप 3 साल का लेते हैं बैलेंस शीट,
ध्यान रखिएगा कि यदि ये पहले साल 10,000 है तो दूसरे साल कुछ कम होना चाहिए, अकॉर्डिंगली तीसरे साल भी कम होना चाहिए, और ये बराबर कम होना चाहिए। जैसे पहले साल 10,000 है तो दूसरे साल 8,000 होगा, तीसरे साल 6,000 होगा। इस तरह से हर साल 2-2 हजार रुपए की कमी होगी, या 2,000 में एक ऐसे ही फिगर बतला रहा हूं, वो जितना साल एक्सपेक्टेड है लाइफ फर्म का उसके हिसाब से वो घटता बढ़ता रहेगा। ओके, तो दिस इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इंटेंजिबल एसेट में मेरे को सभी चीज पे थोड़ा थोड़ा समझाना ही पड़ेगा लगता है। सेकेंड वन, गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल का कैसे डेफिनेशन देंगे? आप ये तो जानते ही हैं कि अगर दो दुकान है, एक दुकान के सामने रिलायंस लिखा हुआ है और दूसरे के सामने ऐसे ही कुछ भी लिखा हुआ है, झबूलाल रमलाल कुछ भी लिखा हुआ, तो ये तो समझ में आता है कि रिलायंस के दुकान का ज्यादा वैल्यू है। क्यों भाई, क्यों ज्यादा वैल्यू है? क्योंकि पब्लिक के बीच में ऐसा एक इंप्रेशन है कि यदि मैं रिलायंस के दुकान में जाऊं तो मुझे प्रॉपर सामान मिलेगा, ढंग का सामान मिलेगा, एक रीजनेबल सामान मिलेगा। आप नमक लाने के लिए जाते हैं, आपको बहुत से तरह के पैकेट दिखलाई देते हैं नमक के, बट जैसे ही आप देखते हैं कि टाटा नमक आपको मिल गया, फिर आप आगे अपना सर्च करना छोड़ देते हैं, उसे लेकर आने लगते हैं, भले ही उसके लिए आपने 1 रुपया ज्यादा दिया है बाकी नमक से। व्हाट इज दिस 1 रुपया? व्हाट इज दैट अमाउंट विच इज एक्सेस इन दोज ऑफ अदर्स? ये जो ज्यादा पैसा आप दूसरे सामानों के तुलना में इस नमक के लिए दे रहे हैं, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। आप एक शर्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, आप यही सी व्हाइट शर्ट को खरीदते हैं। ये व्हाइट शर्ट या इसी तरह का व्हाइट शर्ट कहीं पर 400 रुपये में है, कहीं पर 500 रुपये में है। अचानक आपको एक पीटर इंग्लैंड का सेम व्हाइट शर्ट दिखता है जिसका की कीमत 1,600 रुपया है। आप ये जानते हैं कि चूंकि इसमें पीटर इंग्लैंड लिखा है इसलिए इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, इसलिए 500 के जगह पे आप 1,600 का शर्ट लेकर आते। तो ये जो 1,100 रुपया आपने ज्यादा दिया, दैट इज गुडविल, दैट इज द गुडविल ऑफ पीटर इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि आपके मन में ऐसा है कि बाकी वो वाला शर्ट में कुछ निकल भी जाए, इसमें खराबी निकलने की संभावना कम है। तो नाउ आई थिंक दैट गुडविल इज क्लियर। अगर इसका डेफिनेशन देना हो तो कैसे देंगे? सिंपल है, गुडविल इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। किसी फर्म के रेपुटेशन को यदि पैसे में व्यक्त किया गया है, दैट इज कॉल्ड गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के बहुत से तरीके हैं जो कि हम लोगों को नहीं सीखना है, हम लोगों की जरूरत भी नहीं है, और जो साइंस जो कॉमर्स वाले हैं वो अपना करते रहें। हम लोगों को बैलेंस शीट एनालिसिस में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट ध्यान रखिएगा कि गुडविल इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और बहुत बड़े बड़े लोन में गुडविल को सिक्योरिटी मान के ही लोन दे दिया गया है, जिसके चलते आज बैंकों में परेशानी आई है। जैसे करेगा नाउ थर्ड वन इज ट्रेडमार्क, फोर्थ वन पेटेंट एंड कॉपीराइट। पेटेंट आजकल आप लोग बहुत सुनते होंगे कि ये जो दवा कोरोना के लिए आ रही है इसका पेटेंट मत करने दीजिए। पेटेंट का मतलब क्या हुआ कि जिसने इस दवा का आविष्कार किया है उसे
इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए कि जब भी इस दवा का निर्माण होगा, जब भी इस दवा में कुछ प्रॉफिट होगा तो उसे कुछ मिलेगा। तो पेटेंट और कॉपीराइट क्या है कि हम जो तैयार करते हैं सामान, उसका जब भी यूज हो तो वो मेरे परमिशन से हो और मेरे जानकारी से हो, ताकि हमें जो मिलना है उसके सेल से, उसके प्रॉफिट से, वो हमें प्राप्त होता रहे। तो दैट इज पेटेंट एंड दैट इज कॉपीराइट। कॉपीराइट जनरली बुक्स पर होते हैं, पिक्चर्स पर होते हैं, सीरियल्स पर होते हैं, और पेटेंट जो है वो जनरली आविष्कार पर होते हैं, इन्वेंशंस पर होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये काफी है इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। नाउ नॉन करेंट एसेट्स, अब इस पे आइए। व्हाट इज नॉन करेंट एसेट्स? करेंट एसेट्स के डेफिनेशन पर एक बात जाएंगे। करेंट एसेट्स के डेफिनेशन पे आप जब जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उन एसेट्स को करेंट एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं जो कि 12 महीने के अंदर रिसीवेबल है, और अगर सन्ड्री डेटर्स का केस है तो 6 मंथ्स के अंदर। इसका अर्थ यह है कि अगर जो असेट 12 महीने में रिसीवेबल था, अगर वो किसी कारण से नहीं हुआ रिसीव, तब क्या होगा? तो वो नॉन करेंट हो जाएगा। मतलब ये करेंट एसेट्स में था एक दिन। ऑल दीज एसेट्स वेयर एग्जिस्टिंग इन करेंट एसेट कॉलम। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ विशेषताएं थी जो करेंट एसेट में ये इंक्लूडेड था, बट ड्यू टू lack of the characteristics which are essential for being in current assets, इसे हम लोग करंट एसेट से निकाल करके नॉन करंट एसेट्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसा क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है? जनरली ऐसा एग्जाम्पल होता है डेटर्स ओवर 6 मंथ्स। ओके, नॉन मूविंग स्टॉक, तो इसे थोड़ा नोट कर लीजिए क्या क्या है। पहला डेटर्स ओवर 6 मंथ्स, दूसरा नॉन मूविंग स्टॉक और अनयूजेबल स्टॉक्स, थर्ड वन इज टेलीफोन डिपॉजिट्स, डिपॉजिट विथ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टॉलिंग ए टेलीफोन इन आवर ऑफिस। इसके अलावा डिफर्ड रिसीवेबल्स, जो रिसीवेबल आपको अभी तक नहीं मिला है, मिल जाएगा बाद में। इसके अलावा टूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो टूल्स होते हैं, जो औजार होते हैं, वो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, लेकिन यदि किसी कारण से यदि उसे बेचना पड़े तो कुछ ना कुछ पैसा तो दे के ही जाएगा, इसलिए वो एसेट तो है। तो ये है नॉन करेंट एसेट्स के एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक छोटा सा कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में बतला दूं, उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज में जाएंगे, जो कि अगर आप लोगों ने बना लिया तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, और आप लोग इसका मतलब कि दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करने के लिए अब तैयार हो जाएंगे। तो दैट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटी उन लायबिलिटीज को कहते हैं जो आज के डेट में लायबिलिटी नहीं है, लेकिन किसी घटना के घटने या नहीं घटने से वो लायबिलिटी बन भी सकते हैं। जैसे बैंकों के लिए एक लायबिलिटी होती है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या है? उस तरह की गारंटी है जो कि कस्टमर के बिहाफ में लिया जाता है।
यदि वो पेमेंट नहीं करेगा तब बैंक पेमेंट करेगी। तो आज के डेट में वो लायबिलिटी नहीं है। ये लायबिलिटी कब बनेगी? अगर वो पेमेंट नहीं करे। तो ये इफ लगना चाहिए कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए, है ना। तो ये कुछ हैं ऐसे चीज जो कि आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में है। इनमें ध्यान दे देना है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को न तो असेट साइड में लिखना है न लायबिलिटी साइड में लिखना है, वो बल्कि नीचे एक नोट में कंटिंजेंट लायबिलिटीज के रूप में लिखते चले जाना है। तो इसमें एग्जाम्पल अभी आप सिर्फ इतना ही रखिए, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, बाकी और भी हैं जो कि जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको आते जाएंगे ये सब टर्म्स। तो मैं अभी फिलहाल आपको एक एग्जाम्पल दे करके आपसे एक एक्सरसाइज बनवाना चाहता हूं। आप लोग उस एग्जाम्पल को अब नोट करेंगे। I am giving a question or exercise to you, and I request you to kindly classify these items into first, current assets, second, fixed assets, third one, intangible asset, fourth one, non-current asset, fifth one, current liabilities, sixth, term liabilities, seventh, capital, and eighth, reserves and surplus. And also ninth, that is contingent liability. Item: promoter's contribution. Amount is rupees 59,53,000. It is very small, so I am taking this. Cash and bank balance 1,67,000. Bank overdraft 4 lakh. Term loans 41 lakh. Furniture and fittings 6,75,000. General reserves 3,65,200. Profit and loss debit balance means loss, 4,72,000. Plant and machinery 65 lakhs. Debentures 30 lakhs. Goodwill 10 lakhs. Sundry debtors 32,49,000. Prepaid expenses 95,000. Stock of raw materials 6,55,000. Bills receivable 4,51,000. Tools 17,000. Depreciation on land and building 15,000. Depreciation on furniture and fittings 7,800.
semi-finished products 3,45,000, letter of credit 16 lakh, bills payable 7,45,000, 12 months interest installment on term loans, 12 months installment on term loan, 11 lakh. Unusable stock 4,56,000, preliminary expenses 1,30,000, drawings 6 lakhs, depreciation on plant and machinery 18,000, bank guarantee 7 lakh, investment for 12 months 8 lakhs, cash credit account 9 lakhs, sundry creditors 9,60,000, finished product 5,50,000, letter of undertaking 10 lakh, outstanding taxes 63,000, land and building 15 lakh, deposit with telephone department 18 lakhs.